Hello, today we are going to discuss Geography, Class 8th, third chapter, Mineral and Power Resources. In this chapter, we will talk about mineral first. So, we should know what is mineral. Mineral actually it is naturally occurring substance that has a definite chemical composition. Our minerals are not evenly distributed over space. ये पर्टिकुलर जगह में पाए जाते हैं और जो है इट इज़ नॉट ईजीली एसेसेबल, हम पहुंच नहीं सकते इनको आसानी से बहुत सारे मिनरल के पास। जैसे आर्कटिक ओशन बेड है, अंटार्कटिका है, वहाँ पाया जाता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट अंडर वेरिंग कंडीशंस ये बनते हैं, ठीक है। और इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता, ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness, chemical property जैसे कि solubility. Now we will talk about the types of minerals. On the basis of composition, minerals are classified into metallic and non-metallic minerals. A metallic mineral we can further divide into ferrous and non-ferrous. Let us start with metallic minerals. It contains metal in raw form. Metals क्या है? Hard substance that conduct heat, electricity and have a characteristic luster or sign. जैसे कि आयरन ओर, बॉक्साइट, मैग्नीज, ओके। और मेटेलिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस। फेरस होता है आयरन ओर, मैग्नीज, क्रोमाइट जिसमें कि आयरन की मात्रा होती है। नॉन फेरस होता है जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होती, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड। अब हम बात करेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल की। दे डू नॉट कंटेन मेटल्स, लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, ठीक है। और मिनरल फ्यूल्स हैं आपके कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग। अभी हम माइनिंग की बात करेंगे तो माइनिंग दो तरह के होते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग, शेफ्ट माइनिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग, ठीक है। अब हम जानेंगे ओपन कास्ट माइनिंग क्या है। मिनरल्स दैट लाइज एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दैट इज ओपन कास्ट माइनिंग। Deep bores called shafts have to be made to reach mineral deposit that lies at great depth. This is called shaft mining, ठीक है। And petroleum, natural gas occurs far below the surface and deep wells are bored to take out them. This is called drilling. And minerals that lies near the surface are simply dug out by the process of quarrying. Distribution of minerals. When we talk about distribution of minerals, minerals occurs in different types of rocks. जैसा कि some are found in igneous rocks, some in metamorphic rocks, other occurs in sedimentary rocks. Generally, metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks formation that form large plateaus. Okay. Sedimentary rocks formation of the plains and young fold mountains contains non-metallic minerals like limestone. And mineral fuels such as coal, petroleum are also found in the sedimentary strata. Now we will talk about Asia. China and India have large iron ore deposit. The continent produces more than half of the world's tin. एशिया में आपको डिपॉजिट मिलेंगे मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर। नाउ वी विल टॉक अबाउट यूरोप. It is a producer of iron ore in the world. लीडिंग प्रोड्यूसर है ये। और रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, यहाँ भी जो है लार्ज डिपॉजिट आयरन ओर को देखने को मिलेंगे हमको, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉर्थ अमेरिका. Mineral deposit in North America are located in 3 zones. Canadian region north of the Great Lakes,
Appalachian region, and the mountain ranges of the west. Iron ore, nickel, gold, uranium, copper are mined in the Canadian Shield region. Coal in the Appalachian region. Western Cordilleras have vast deposit of copper, lead, zinc, gold and silver. अभी हम साउथ अमेरिका की बात करेंगे. ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड. और जो है मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया एटसेट्रा. Now we will talk about Africa. Africa is rich in mineral resources, world's largest producer of diamond, gold and platinum. ठीक है. Oil is found in Nigeria, Libya, Angola. Now we will talk about the Australia. It is the largest producer of bauxite in the world, leading producer of gold, diamond, iron ore, tin, nickel, and also rich in copper, lead, zinc, manganese. Now we will talk about the Antarctica. The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of the variety of mineral deposit. Iron ore, gold, silver, oil are also present in commercial quantities. अभी यूजेस ऑफ मिनरल्स की बात करेंगे. बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं मिनरल. एंड आप देखोगे ज्वेलरी बनाए जाते हैं वेरियस स्टाइल का. कॉपर से जो है अनदर मेटल बनाई जाती है. बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है. एंड एल्युमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट. इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, airplanes, bottling industries, buildings and even in the kitchen cookware. Okay. And conservation of minerals में हमको मालूम है कि minerals are non-renewable resources because it takes thousands of years for the formation and concentration of minerals. Our rate of formation is much smaller than the rate of that which the humans consume these minerals. तो इसीलिए हमको इसका जो है वेस्टेज को रिड्यूस करना होगा. माइनिंग के टाइम में जो वेस्टेज होता है. एंड रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व. नाउ वी विल टॉक अबाउट द पावर रिसोर्सेज. पावर को एनर्जी भी बोला जाता है. इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. ठीक है. आप देखोगे कि पावर का यूज़ हर जगह होता है. इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफेंस, एवरीवेयर इट इज़ यूज्ड. एंड इट कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स. कन्वेंशनल रिसोर्स क्या है? देखो, वो होती है विच हैव बीन इन कॉमन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम. जैसे लकड़ी है, फॉसिल फ्यूल्स है, आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स. ठीक है. फायरवुड क्या है? इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग. हमारे कंट्री में मोस्टली विलेज में जो है घर में खाना बनाने के लिए लकड़ी का यूज़ किया जाता है. ठीक है. एंड फॉसल फ्यूल्स जो हैं वो है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. ये कन्वेंशनल एनर्जी है जो कि लिमिटेड है इनका रिज़र्व. और पॉपुलेशन जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और इसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है. अगर लिमिटेड कंजप्शन ना हो तो फिर ख़त्म होने के चांसेस भी हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोल. It is used as domestic fuel in industries जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्री है, स्टीम इंजिन्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इसका यूज़ किया जाता है. इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर. ठीक है. और जो है कोल इज़ देयरफॉर रिफर टू एज बरीड सनशाइन, क्योंकि the coal which we are using today
was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of the earth. ठीक है, और इसका लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ है इंडिया में रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, झारखंड, ये सारी हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेट्रोलियम। जब हम पेट्रोलियम की बात करते हैं, ये बहुत ही प्रीसियस है। आप देखो, बिना पेट्रोल के कोई भी गाड़ी चल नहीं पाएगी, चाहे वो कार हो, चाहे वो प्लेन हो, बाइक जो चलाते हो, इसके लिए हमको पेट्रोल की ज़रूरत होती है। ठीक है, इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इट इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफशोर and coastal areas. This is then sent to the refineries which process the crude oil and produce a variety of products जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वॉक्स, plastics, lubricants, and petroleum and its derivatives are called black gold and they are very valuable. और cheap producing countries है ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, कतर। और मेजर अदर प्रोड्यूसर्स हैं यूएसए, रसिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया। और इंडिया में दिग्बॉय इन आसाम, बॉम्बे हाई इन मुंबई, डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट। इट इज़ रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट टू द सरफेस। और ये जो है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। रसिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द नेचुरल गैस। इंडिया में आप देखोगे जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और सम एरियाज ऑफ ऑफशोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेस। ठीक है, अभी हम हाइडल पावर की बात करेंगे। Rainwater or river store in dams is made to fall from heights. The falling water flows through pipes inside the dam over turbine blades placed at the bottom of the dam. Moving blades then turn the generator to produce electricity. This is called hydroelectricity. ठीक है, and the water discharge after the generation of the electricity is used for irrigation. 1/4 of the world's electricity is produced by hydel power. और इसका जो लीडिंग प्रोड्यूसर है पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना है। ओके, और इंडिया में आप देखोगे भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुना सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स, यहाँ आपको हाइडल पावर जनरेशन देखोगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस और एनर्जी। अभी हम इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत आएगा आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल एनर्जी। ओके, अभी हम सोलर एनर्जी की बात करेंगे। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ड बाई अस एवरी डे। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। Many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose. ठीक है, और इससे क्या होता है, it is used in solar heaters, solar cooker, solar dryers और lighting, traffic signal, ये सब के लिए यूज़ किया जाता है। Now we will talk about wind energy. It is inexhaustible source of energy, जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। जब तक दुनिया चलेगी तब तक हमको विंड एनर्जी उपलब्ध होगा। And wind farms having cluster of such windmills are located in coastal regions and in mountain passes where strong and steady wind. Wind farms are founded in Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA, Spain, etc. Now we will talk about the nuclear power. It is obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium. These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactor and emit power. Okay, and greater producer इसका है यूएसए, यूरोप। न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया में है कलपक्कम में, जो कि तमिलनाडु में है, तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है,
Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan, Narora in UP, Kaiga in Karnataka. Now we will talk about the geothermal energy. Heat energy obtained from the earth is called geothermal energy. The temperature in the interior of the earth rises steadily as we go deeper. Sometimes this heat may surface itself in the form of hot springs. These heat energy can be used to generate power. Okay, and geothermal energy in the form of hot spring has been used for the cooking, heating, bathing. USA has the world's largest geothermal power plants, followed by New Zealand, Iceland, Philippines एंड सेंट्रल अमेरिका. इंडिया में आप देखोगे हिमाचल प्रदेश में ये मानिकारण में मिलेगा, पूगा वैली इन लद्दाख में मिलेगा. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी टाइड से जनरेट की जाती है एनर्जी. एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी. एंड टाइडल एनर्जी कैन बी harnessed by building dams at narrowing of the seas. During high tide, the energy of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. Russia, France, Gulf of Kutch in India have huge tidal mill farms. Now we will talk about the biogas. बायोगैस की बात करें तो ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स, एनिमल मटेरियल्स, एनिमल डंग, kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas. And the organic waste is decomposed by bacteria in biogas digesters to emit biogas, which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide. And biogas is an excellent fuel for cooking and lighting and produces high amount of organic manure each year. Okay. अभी हम विंड एनर्जी की बात करेंगे, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे. तो विंड एनर्जी है नॉन पॉल्यूटिंग, लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वंस सेटअप, सेफ एंड क्लीन. और इसका डिसएडवांटेजेस है नॉइज़ पॉल्यूशन एंड विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप, डिस्टर्ब रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन, हार्मफुल टू बर्ड्स. और सोलर एनर्जी का एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो एडवांटेज इसका क्या है, इन एग्जॉस्टिबल है, नॉन पॉल्यूटिंग है. और डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपेंसिव है, डिफ्यूज सोर्स सो गेट वेस्टेड. टाइडल एनर्जी का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस क्या है, नॉन पॉल्यूटिंग है, इन एग्जॉस्टिबल है. और डिसएडवांटेजेस क्या है, डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, डिफ़िकल्ट टू हार्नेस. अभी हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी की. इसका एडवांटेजेस है एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, डिसएडवांटेजेस है जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट, एक्सपेंसिव. और बायोगैस की बात करेंगे, इसका एडवांटेजेस है लो कॉस्ट, इजी टू ऑपरेट, मेक्स यूज़ ऑफ बायो वेस्ट. डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट. और जियोथर्मल एनर्जी की बात करेंगे तो इसका एडवांटेजेस है क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल. डिसएडवांटेजेस है लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज़, सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी.